BTech in automobile engineering from my one of the premium college in Calcutta, that is the under WBT University. And after completion of the BTech, I have joined in one organization that is known as Sawalka Kel Private Limited. They were majorly involved in production with railway wagons, automobile ancillaries. I have worked there as a production engineer trainee for 1 year. Okay, and after that, I have given the CAT and the MAT exam, and have joined in my MBA courses from ISWBM, the Indian Institute of Social Welfare and Business Management, that comes under Calcutta University. Okay, so I have completed my transport and logistics management in the year 2012 to 2014. And in 2014, I have been selected in Ultratech Cement, and since that time, I am working with Ultratech Cement. Okay, and just recently, I have in 2025, I have joined in Hindalco Industry Limited. So one of the most important thing that I want to make you want to notice all of you, that my career start with a very privileged and a very good organization. Okay, so one of the most important things that I am very want to thanks the ABG group for giving me such a good opportunity to learn. Okay, so what I have learned through this ABG journey, I want to share with. First of all, I have joined Ultratech in 2014. Okay, in 2014, Ultratech Cement, I have posted in Ravan Cement Works. So in Ravan Cement Works, I have done as a road operation in charge. And after working for 3 years in Ravan Cement Works, I have been shifted to Calcutta Zonal Office in Ultratech Cement. There I have worked as a network analyst and a performance manager. And later on, I have transferred as a Zonal Secondary Logistics Operation. In 2021, I have been shifted in Sonar Bangla Cement Works. That is one of the premium plant of Ultratech. From 2021 to 2023, I have worked in Sonar Bangla as a head road operation position. In 2023, I have been shifted from Sonar Bangla to Hirmi Cement Works, that is in Chhattisgarh. In Chhattisgarh, I was working as a deputy plant logistics head. And recently in 2025, I have joined in Hindalco Industries Limited. Okay. So regarding my journey, I want to share my experiences which I have gained from here. First of all, when we have joined in Ultratech Cement in 2014, at that time, the digitization industry was not such much booming. Okay. I have seen the industry growing from a small to a very big one, and now Ultratech Cement is one of the India's largest cement producing unit. Okay, and what I have experienced from this company, that first of all, the company, what the company want, the company at that time, the company's major motivation is to capture the market share. Okay, as time goes on, the company, when company have gain a good amount of experience in the market share, they transform their motivation to the optimization of cost. And in a supply chain and in the logistics industry, the cost optimization is one of the most important things, because in any of the company, in a either in a cement company or in a metal company or any other company, the logistics cost hold about 23 to 24% of the EBITDA. Okay, so all the companies are trying to optimize the logistics cost. And how Ultratech have optimized the logistics cost, that is the very big case study. At one time, Ultratech have very small amount of plants in India. So as time goes on, they are going through acquisitions, the mergers, and as time goes on, when they are going through acquisition mergers, they have ample of plans throughout the India. Okay, they're trying focus on increasing the primary dispatches rather than focusing on the secondary dispatches. In a cement company,
or in a metal company, one of the most important thing that each and every logistician go through, that is the TLC, that is the total logistics cost. Okay. Now, what is the total logistics cost? The total logistics cost is nothing but the primary cost, the secondary cost, and the handling cost. Comprising the three things comes the total logistics cost. Okay. So as time goes on, Ultratech try to focus on the primary cost. Rather, when you are sending a material to a new customer, suppose I am giving you an example. Suppose I am sending one material from Delhi to Calcutta. Okay. Suppose when I am sending one material to Delhi to Kolkata, which mode I will go on? Either can I go through rail or go through road. Okay. Rail Or will go be through better. sea. Huh. I think rail will be. You say, you say that rail will be cheaper. Okay. That is a very good answer. But I want to express one thing and want to make you aware about the one thing, that when you are sending a material to rail, you have to minimum give them 2700 to 4000 MT of cement to them, because the rail are having 58 wagons. Okay. Hmm. Hmm. And when you are saying sending a material to truck, you can give them 25 MT or 30 MT. If the customer that also depend upon the customer requirement. If customer want 2700 MT of material, you can go through rail. But when customer want 25 MT of material, you have to go through rail. Hmm. Am I clear? But yes, there is a catch, because when you are sending material from Delhi to Kolkata, suppose the freight of a this is totally assumption freight. Okay, do not take it. There is no connection with the organization. Okay, suppose I'm saying that from Delhi to Calcutta, per MT of freight through rail is near about 1000 rupees. Okay, and when I'm sending the same thing through road, per MT of material is coming near about 2000 rupees. Okay, so when I am sending the material through road, I am sending that particular material to the doorstep of the customer. But when I'm sending through rail, I am not been able to send that material to the doorstep of that customer. Again, I have to go to any type of multimodal transport. Okay, like the rail and the road combinations. Okay, so what are the things these are getting involved? So suppose I am sending one material from Calcutta to Delhi to Calcutta. First, it will go from rail. It will go by rail from Delhi to Calcutta. The entire material will get down in Calcutta. So what are the things involved in that freight? The primary freight you are giving from Delhi to Calcutta by rail. Okay. After that, you will engage some amount of labor or the workers to handle the material. Okay. So another charge involved in that case. Now again you have to arrange a second transportation, that is the road. Okay. And to fulfill that requirement, again we have to arrange a labor to load that material to the truck or the small vehicle which you are arranging. Okay. And after that, when you have arranged all the things, you have to send that material from that railhead to the doorstep of the customer. So three things or the three freight which get involved in that case: primary freight, handling freight, and secondary freight. Maybe if I am sending that material direct to the customer from Delhi to Calcutta, may be cheaper than the second option. May be cheaper. Through road, you are suggesting. But that is not for all the cases, because instead of this or beside this, we have to do many type of permutation and combinations regarding the location of the plant, location of the customer, and after that we are going through one or two of the options, either rail or road, because in cement industry we are not going through the third mode, that is the sea. Okay, we are not doing export. Okay. Now
regarding that, what are the most important thing you have to सर learn? अगर तो Yes. बहुत ही ज्यादा बल्क में होगा फिर तो रेलवे से ही करेंगे ना। Yes. That is the main thing. That is the main catch. If you are sending bulk material, you are going through rail. Okay, but when you are sending very small material, you are sending through Road. road. But one of the most important thing that each and every customer in the cement industry they try to follow, they try to sell the material at a radius of 150 kilometer, and they try to send that material only by road mode, because in low lead area rail is not a very cheap option. In that case, road is the only best option for that. But in, instead or in spite or beside this, there are various type of permutations and combinations, because at various point of time railway are giving discounts, railway are giving their type of various type of benefits for the customers like the Ultratech, the Coal India. So suppose I can just give you a example that railway are giving the two type of charges, that is the busy season charges and the lean season charges. Okay, when you are sending the material, the lean season charges are only for 3 months, July, August and September. Okay, and the total 9 months there is the busy season charges. So when you are sending material in the lean season charges, you are getting a discount of 15% of your base freight. At that time This is the railroad applicable is only for cement. not no. There are various type of classes in railway that is applicable for coal, wheat, paddy. There are various type of classes, class A, B, C, D. Okay, the railway are giving their wagons according to their priority. Okay, the priority A class is rice, wheat, paddy. This is the priority. Okay, the second priority is for the coal industry, because the power plant is driven by the coal industry. Okay, and the C class is coming as cement industry. So railway are supplying rake through their priorities. Okay, and after that one or two challenges which we are facing in nowadays, that is the coming of the initiation of the AI. Okay, AI is not only doing good and bad. I will not comment on that. Okay, AI. Suppose you'll hear some here that AI is taking jobs. AI is replacing people. Various type of controversies is coming here and there. But through AIs, the companies are also getting benefits. Okay. Suppose I am giving you an example. Ultratech Cement or any of the companies nowadays, there are various type of companies that they are working upon the digitization or the in the APIs. First, I will go through the digitization process. That will make you very clear. Previously, we are doing invoicing like the Amazon, Flipkart, Ultratech. Previously, we are doing invoicing through the papers. Okay, we are after get pass has been generated, we are giving a hard copy of invoice print to the drivers. Okay, and the drivers, and we are giving 3 copies, one for the drivers, one for the customer, and one for the company. Okay, now there is a paradigm shift in digitalization. Okay, what comes? Ultratech have come with a driver app option. And what is the driver app option? Suppose when a vehicle is getting loaded from plant, the total invoicing process will go in driver's mobile. A PDF invoice will be going to the driver mobile, and the driver is allowed to take that invoice and the mobile to the customer, and through customer they can do the EPOD process, that is the electronic proof of delivery, that is the receiving of the material. Okay, so what are the things what are the cost initiative which I have taken through this? That is like the I each and every time I am giving 3 papers. Suppose Ultratech have 50 plants. Okay, average
dispatch of one plant is near about 5,000 MT per day. Okay, 3 papers at least 1 rupees cost. The total process is have gone through digitization, and the total cost elimination has been done for a long-term basis. This is one of the example which I have given you. Besides this, there are various type of initiatives that Ultratech have done, like the EPOD. Then other cement industry have also done the EPOD. Okay, like the electronic delivery. Previously, transporter or the any of the drivers are going to the customer point. They are getting seal and submit the bill to the Ultratech, and after that, Ultratech was paying, or any of the company was paying them. Okay. After that EPOD launch, after the launch of EPOD, what the main thing they have gained, that is the whenever a vehicle is going to the customer point, the transporter are getting a EPOD option in their mobile. Okay, whenever they have received the material, they will put the tick button and the EPOD is done, and the billing are electronic generated in their transporter portal app, and transporter can. And what are the main advantage for this EPOD? There are two advantages. One, the transporter rolling capital is getting faster. Suppose EPOD done, transporter submit the bill and will get the amount in 3 to 4 days. And the second thing, Ultratech or the any other industry can take the freight benefit or any type of benefit, because previously transporters are keeping 2 or 3% to send them to the dealer point. They are giving them a cost. That cost has been totally eliminated by the transporter point, and that cost will be taken benefit, or the advantage will be taken by the any of the companies. Because previously suppose I am keeping 2%, I am giving them a salary of 10,000 each, go to every dealer point and get the seal and the stamp done and come back. Okay, so the 10,000 is totally eliminated na. उनके एंड का भी कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है और हमारे एंड का भी रिड्यूस हो रहा है ईपीओडी आने से. हाँ, तो डिजिटाइजेशन, आफ्टर डिजिटाइजेशन, win-win situation on both end. Okay, and one of the most important things that in Ultratech, there is a session known as the Gyanodaya session. Okay, in Gyanodaya session, various type of programs are coming through us. So what were one or two things that I have recently learned through this session? That is the generative AI, which are recently booming. Okay, the Tableau. Okay, after that there is Power BI is also coming here. Besides this, IBM is also launching 1 or 2, 3 programs, that is the IBM Cognos. Okay, so I have given you definition of various type of tools and what are the function of the tools. I want to just mention you 1 or 2 tools about that, like the Tableau. What are the Tableau type of tool, and this type of tools are totally booming in the industry, since it is eliminating the requirement of MIS. Management Information System. How it is? Suppose I am keeping 1% for doing MIS. Okay. So when I establish the Tableau tools, everyday data is getting generated in the Tableau tools. So I can take the decision on a real-time basis rather than depending on someone. Sir, do we also need to learn about softwares like SPSS and SAP? Does that also help? SPSS and SAP, I want to clarify one thing, that previously when I was in Ultratech, I was using SAP. Now I have joined Inlalco, I am using Oracle. Okay, good thing. But when you are joining any of the organization, still now you do not know in which module you will be going to work in SAP. Okay, suppose but 1 or 2 suggestions I can give you, that since you are I think all of you are doing in supply chain management, no? Yes, sir. Yes. So what is the supply chain management? What are the in SAP have different type of modules? Okay, like the sales and distribution module,
the material MM. management module, the HR module, the accounts FICO module. Okay, each and every module is not required by us. Okay, so when we are going through logistician is join the industry, they are going through majorly two type of modules, that is the SD module and the MM module. Hmm. So when you want to learn the SAP, you first learn the SD or the MM module. That will also be a good catch for you, because in SAP is very much familiar and friendly than other tool, because there are only the codings are there and the coding is universal. Suppose you are staying in India, the one code, suppose for dispatch code, that is there is the 112, and when you are sitting in Germany, the same code you also apply. But in Sir, so Oracle, hmm. yes. Yes, Sir, yes, yes. so Continue. it is more beneficial to learn SAP, or we should go towards the Power BI, Tableau, and tools like them. Power BI, Tableau tools are for different motivations and SAP are for different motivations. Okay. बिगिनर के SAP, लिए प्रेफरेंस हाँ, प्रायोरिटी क्या रखें? प्रायोरिटी क्या सर रखें? अभी के लिए प्रायोरिटी हाँ, अभी के लिए प्रायोरिटी तुम रखो पावर BI, नहीं तो तुम कोई दूसरा टूल्स के प्रायोरिटी रखो. कारण क्या है, SAP तुम जो भी इंडस्ट्री में जाओगे, इंडस्ट्री में जैसे कि मेटल्स हो, सीमेंट हो, या कोई भी कंपनी हो, वो इधर SAP यूज करता है, नहीं तो ओराकल यूज करता है. ठीक है, तो तुम जाने के बाद तुमको तो SAP ओराकल तो सीखने को मिल ही जाएगा, पर पावर BI तुमको कोई सिखाएगा नहीं अलग से. Hmm. So at this time you can go through Power BI, the Tableau, this type of things you can do. That likewise I am also giving you a suggestion. If you kindly go for a tool that is known as SCS, the Supply Chain Strategist. SCS. SCS, the Supply Chain Strategist. The Supply Chain Strategist is a tool. ये टूल क्या करता है बेसिकली, ये टूल का एक्टिवेशन या फंक्शंस ऐसा होता है, आज का डेट में जितना भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज होता है ना, वो अपना बजट जो बनाता है ना, वो बजट ऐसा इजीली एक्सेल में नहीं बनाता. वो एक सप्लाई चेन स्ट्रेटेजिस्ट, नहीं तो ऐसा टाइप का कुछ बहुत सारे टूल्स आता है मार्केट में, ठीक है, जिसके ऊपर करता है. ये टूल्स क्या करता है, ये टूल्स का काम है तुमको ऑप्टिमाइजर रन करके तुमको ऑप्टिमम टीएलसी कॉस्ट या टीडीसी कॉस्ट का बजट देने का. मतलब तुमको ये टूल गाइड करेगा सबसे कम कॉस्ट में तुम कैसे करके मटेरियल भेज सकते हो. Hmm. This is one of the very good tool for the analyst, because since I was also using this type of tool for more than 3 years in Ultratech. ये तो सप्लाई चेन स्ट्रेटेजिस्ट अल्ट्राटेक में नाम है, कोई दूसरा जगह पे दूसरा भी नाम हो सकता है, पर बेसिकली दिस इज अ बजटिंग टूल एंड द डिमांड एंड द सप्लाई प्लानिंग टूल. ये सर जब हम टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात कर रहे थे, उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस वो सारे कैसे करते हैं और वो कौन करता है? जो परमोटेशन Groups कॉम्बिनेशन की. करता है, ये SCS टूल करता है, जिसका मैं अभी बोला तुमको. Hmm. बेसिकली क्या होता है, मैं एक बार थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल है जो मैं तुमको मतलब समझाने में उतना ही. जैसे करके मान के चलो तुम्हारा 10 लोकेशन है, ठीक है, एग्जाम्पल में 10 लोकेशन ले लेता हूँ, तुम्हारा 5 में जाता हूँ, 5 लोकेशन में जाता हूँ, तो तुम्हारा थोड़ा इजी होगा समझने में. मान के चलो तुम्हारा घर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ओके, जैसे अक्षत इज लिविंग इन छत्तीसगढ़, ओके. तो मान के चलो अभी तुम्हारा लोकेशन, एक लोकेशन है मध्य प्रदेश, एक लोकेशन है उड़ीसा, ये सब मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन बता रहा हूँ, ओके. एक लोकेशन हो गया मध्य प्रदेश, एक लोकेशन हो गया उड़ीसा, ठीक है, एक लोकेशन हो गया तुम्हारा वेस्ट बंगाल, एक लोकेशन हो गया तुम्हारा महाराष्ट्र, ठीक है, और एक लोकेशन हो गया दिल्ली, ठीक है. अभी मान के चलो तुमको मटेरियल सप्लाई करना है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, फॉर विच ऑप्शन और फ्रॉम विच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यू विल सेंड. पास वाले में जस्ट मेरा क्वेश्चन, MP उड़ीसा. MP उड़ीसा में सेंड करना है ना, ओके. अभी MP उड़ीसा से तुम सेंड करोगे तो तुम पहला फर्स्ट ऑप्शन में जाओगे, रोड कॉम्बिनेशन में जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि MP उड़ीसा तुम्हारा बहुत पास होगा, Hmm. ठीक है.
तो ऐसा भी हो सकता है, ये जैसे करके मान के चलो मैं बोला एमपी उड़ीसा में तुम फ्रेट नेगोशिएट किए तो तुमको आ गया 1000 रुपीज फ्रेट, ठीक है। अभी मान के चलो महाराष्ट्र से कोई एक रेल साइडिंग है जिससे तुमको एक टाइप का रेलवे बेनिफिट दिया है, जिसमें तुमको 500 रुपीज लग रहा है उसमें छत्तीसगढ़ में मटेरियल ले आने के लिए, ठीक है। और उसके साथ सेकेंडरी कॉस्ट और हैंडलिंग मिला के भी तुमको टोटल 900 आ रहा है 1000 की जगह पे। तो वो जो पर्टिकुलर टूल है ना, वो टूल तुमको वो काम करके देगा जब तुम उसमें कॉस्ट इनपुट कैलकुलेशन के डालोगे। लिए। जब तुम उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट प्राइमरी फेट डाल दिए, सेकेंडरी फेट डाल दिए और हैंडलिंग डाल दिए, तब तुमको वो ऑप्टिमाइजर चला के तुमको वो देगा कौन सा मोड इज चीपर। तो सर ये जो पर इनपुट है, जो हाँ, कॉस्ट है, वो भी तो हम्म, रेगुलरली उनका प्राइस चेंज होता ही होगा। नहीं 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 नहीं, कोई इंडस्ट्री में रेगुलरली प्राइस चेंज नहीं होता। फ्रेट रेलवे का भी नहीं। कोई भी इंडस्ट्री में नहीं 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 नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में रेगुलरली फ्रेट चेंज नहीं होता। बस रेलवे वो का जो तो आपने स्पेशली, सीजनल का बताया वो हो जाता है, वो जून जुलाई। हाँ वो जस्ट ओनली वो रेलवे का रूल्स एंड पॉलिसीज में ही आता है। अगर रेलवे का कोई भी फ्रेट चेंज होगा उसका सर्कुलर निकलेगा, सर्कुलर निकलने के बाद ही उसका फ्रेट चेंजेस का ऑप्शन आएगा, उसके पहले कभी भी वो वैलिडिटी नहीं होगा रेलवे का। तुम और एक साइट बता देता हूँ तुमको, लोग अगर रेलवे का में कहीं देखना है, फॉयस बोल के, FYS फॉयस, फॉयस में जाके तुम लोग रेलवे का फ्रेट देख सकते हो। मतलब अगर कोई इसमें कार्गो भेजना है, ये मतलब कुछ रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है, इसमें डेटा कोई भी व्यू कर सकता है। ना 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 ना, पर हम्म उसमें उसमें तुमको ये जानना पड़ेगा स्टेशन, जैसा करके हम लोग जब कभी भी रेलवे का बुकिंग करते हो, रेलवे का टिकट बुकिंग करते हो ना सब आदमी। ऐसा। दीक्षा तुम्हारा घर कहाँ है? सर अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब। कृष्णा वेनी तुम्हारा घर? केरला। सर केरला, नाइजीरिया ओके। से है। हाँ, केरला सर। ओके ओके, एनीवे, अगर मान के चलो अभी अभी तुम लोग कहाँ स्टे कर रहे हो? देहरादून। उत्तराखंड। देहरादून। देहरादून, ठीक है। हम्म जब तुम रेलवे का टिकट बुक करते हो IRCTC में, मान के चलो मैं पकड़ लेता हूँ, तुम लोग ज्यादा फ्लाइट में जाते हो, रेलवे का टिकट बुक कम करते हो, पर कभी भी अगर रेलवे का टिकट बुक करने जाते हो IRCTC साइट में जाके देखना, जब देहरादून का तुम कोड डाल रहे हो, देहरादून लिख रहे हो, तो देहरादून बोल के नहीं आता, एक छोटा कोड आता है, DDN, DDN। ठीक है। हम्म हाँ, और मान के चलो अमृतसर का कोड आएगा क्या? ASR। हाँ आ गया। वही सेम चीज तुमको स्टेशन कोड फॉयस में डाल के देख सकते हो कितना तुम्हारा फ्रेट है। और फॉयस एक तुम्हारा बहुत बड़ा वैल्यूएबल टूल है तुमको इनपुट देने के लिए। ये तो हो गया तुम्हारा बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्रीज का मैं बताया, पर मेटल इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट। क्योंकि मेटल इंडस्ट्री में अभी मैं भी ज्वाइन किया, मेटल इंडस्ट्री में तुम्हारा करीब 2.5 मंथ्स हुआ है, ठीक है। उतना बहुत सा नॉलेज तो मेरे को अभी तक मेटल इंडस्ट्री में नहीं आया, पर सबसे बड़ा मेटल इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस है, ये सीमेंट इंडस्ट्री में लोडिंग अनलोडिंग ये वगैरह जो चीज होता है, मेटल इंडस्ट्री में ये सेकेंडरी कॉस्ट का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि मेटल इंडस्ट्री बहुत ही तुम्हारा हाई वैल्यू इंडस्ट्री है। जैसे एल्यूमिनियम, जैसे करके अगर तुम 1 टन सीमेंट का कंपेयर करोगे रिगार्डिंग विद 1 टन एल्यूमिनियम, वेरी हाई कॉस्ट। तो मेटल इंडस्ट्री में बहुत चीजें इसमें जाता है, तुमको इसके लिए जानना चाहिए। बेसिकली तुम लोग और एक कोर्स कर सकते हो जिसमें बहुत हेल्पफुल होगा अपकमिंग टाइम में, दैट इज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स, दैट इज द बूमिंग कोर्स इन द वर्ल्ड नाउ, एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये दो का कोर्स का नॉलेज लो, दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आज का देखो तुम्हारा, जैसे करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तुम देखो आज का, तुम लोग तो अपडेट हो क्वाइट, ईरान US का ये चल रहा है, यस सर। ईरान US का ये चल रहा है। अभी मेरे को एक चीज बताओ, ईरान US का तो चल रहा है, चलो ठीक है, पर सब कुछ का दाम महंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अभी दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्रूड और ऑयल वो के इंपोर्ट डॉलर का एक्सपोर्ट भी में, दिक्कत आ गया था। हाँ ठीक है, डॉलर का भी दिक्कत आ गया, क्रूड ऑयल का भी दिक्कत आ गया, पर मेरा घर का वेजिटेबल का दाम बढ़ क्यों रहा है, या मेरा घर का कुछ सामान का दाम क्यों बढ़ रहा है?
सर क्योंकि जैसे वेजिटेबल्स को भी पॉइंट ए से आपके घर के पास का जो स्टोर होगा वहां का आने का कोई कॉस्ट होगा, जिसके कारण जो पेट्रोल के प्राइसेस डीजल के प्राइसेस हाइक हुए हैं, तो उन लोग हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा यूनिट्स में कॉस्ट उसकी इंक्रीज कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको ही आगे से रेट बढ़ के मिल रहा है। हम्म। और कुछ एनी सेशन, कृष्णवेनी, दीक्षा? देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे करके क्रूड ऑयल नहीं, जैसे करके ऑयल्स, जो कोई भी ऑयल्स आता है तुम्हारा ऑयल रिगर से आता है, वो कभी समुंदर के बीच में से ही कई जगह से क्रूड ऑयल जो निकलता है टाट टाइप का, ठीक है, वो एक एक टेम्परेचर में सैचुरेशन पॉइंट में जाने के बाद अलग अलग मटेरियल अलग अलग कॉम्पोजिशन में चेंज होना चालू करते हैं। जैसे करके तुम्हारा 350 डिग्री में उसको बर्न किया क्रूड ऑयल को, उसका पहला जैसे करके तुम्हारा क्रूड ऑयल को जैसे बर्न करेगा उसमें बिटुमिनस आ जाएगा, मतलब जो रास्ते में जो बनता है ना बिटुमिनस, वो आ जाएगा। उसके बाद और बर्निंग करेगा तो उससे शायद वो डीजल बनेगा, उसके बाद और बर्निंग करेगा तो प्लेन का गैसोलीन बनेगा, ऐसा बनता जाता है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या होता है, जैसे करके क्रूड ऑयल का जो कमती हो रहा है, ठीक है, उसमें तुम्हारा टोटल इम्पैक्ट इंडस्ट्री से ऊपर भी सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, तुम्हारा नॉर्मल जो ट्रांसपोर्टेशन है। मेरा पास जितना भी क्रूड ऑयल है इंडिया में, शायद इंडिया में उतना क्रूड ऑयल का रिजर्वर से ज्यादा पॉपुलेशन से जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको बाहर से मटेरियल लेना पड़ता है, ठीक है। तो जब वो बाहर से मटेरियल ले रहा है तो बाहर से मटेरियल का कॉस्ट तो आज के रेट में बढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारा वो पूरा बंद है, ठीक है। अभी उसको जैसे करके इंडियन इकोनॉमी में कैसे करके हिट कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी में कैसे करके हिट कर रहा है, जब तुम्हारा ऑयल का दाम बढ़ रहा है तब ईच एंड, जब हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो पढ़ रहा है, सप्लाई चेन का देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट टोटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं, पर उसमें से एक पॉइंट होता है लॉजिस्टिक्स, ठीक है। लॉजिस्टिक्स का ओवरऑल कॉस्ट में पूरा इंपैक्ट डाल देता है, ठीक है। तुम्हारा कोई भी मटेरियल तुम्हारा घर तक पहुंचता है, आज का डेट में तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शंस उतना भी वैल्यूएबल नहीं हो पाया, कोई ऑप्शंस तुमको घर तक मटेरियल पहुंचने में रेदर देन डीजल एंड पेट्रोल, ओके। तो ये जो पेट्रोल का दाम तुम्हारा, उसके साथ आने वाला जो जो चीज है, जो मेडिसिन हो गया, सब्जी हो गया, जो भी है, वो सब नॉर्मली बढ़ते जाएगा। और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के कारण से गोल्ड का भी, जैसे करके गोल्ड का भी इंडस्ट्री तुम देखना, गोल्ड का भी दाम ऐसे 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 गिरते जा रहा है आज के डेट में। पर हाँ, उसमें आज का डेट में वर्ल्ड में थर्ड चीज जो है सबसे जो वैल्यूएबल है, एक तो है तुम्हारा एआई हो गया, ठीक है। सेकंड में क्या बताया, एक में एआई बताया, अच्छा थे। एक तुम्हारा जो पावर टूल्स है, टैबलू हो गया, ये वगैरह हो गया ये। और थर्ड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेनेबिलिटी कोई कोर्स अगर होता है या सस्टेनेबिलिटी कोई नॉलेज आता है, तो उसको लेके कोशिश करो, उसको लेके नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत सारे आदमी सप्लाई चेन में सस्टेनेबिलिटी का स्ट्रीम भी सिलेक्ट कर सकते हो। सस्टेनेबिलिटी क्या है, आज का डेट में ये जो प्रॉब्लम्स आ रहा है ना, जो क्रूड ऑयल्स का, ठीक है, अगर हमारा इंडिया उतना काबिल होता, पूरा ईवी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया का, तब ये क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम से कुछ होता। आज का डेट में हम लोग का हिंदाल्को या अल्ट्राटेक जो भी कंपनीज है ना, वो लोग ईवी गाड़ी इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया है। तो गेट रीड, नॉट ओनली टू गेट रीड ऑफ दिस CO2 का फुटप्रिंट ऑल ओवर वर्ल्ड में कम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसलिए सस्टेनेबिलिटी आज के डेट में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अगर कोई कोर्स होता है सप्लाई चेन रिलेटेड, उसको भी करने का, यू कैन ऑल्सो टेक योर करियर थ्रू सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी एक बूमिंग इंडस्ट्री है आज के डेट में, बूमिंग स्ट्रीम है, जो तुम्हारा उसके सप्लाई चेन के साथ वो भी ऊपर ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही सब मोटा मोटी तुमको मिलेगा। बाद बाकी देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज का डेट में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस एक्सेल जैसे करके लेके आया है। एडवांस एक्सेल को अभी तक बहुत सारे कुछ रिप्लेस नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि एडवांस एक्सेल भी आज के डेट में कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे तो एडवांस एक्सेल इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरे को लगता है तुम लोग का कॉलेज में आज के डेट में एडवांस एक्सेल सिखा भी रहा होगा।
नहीं, सिखा जैसे तो नहीं रहे करके हैं, पर अलग से बोल रहे हैं बोला कि गया है कि करो। सीख के रखो। हाँ, तो एडवांस हम्म, एक्सेल में ऐसा कुछ टूल्स आता है, एच लुकअप, वी लुकअप, काउंट इफ, सम इफ। तो ये सब टूल्स जितना भी आता है, तो ये सब टूल्स में देखना, तुम्हारा जितना भी दिन का जो बड़ा बड़ा काम है ना, जो बड़ा बड़ा मतलब। और थर्ड में फोर्थ एक चीज में मेंशन करना भूल गया, वो है बिग डेटा मैनेजमेंट। फोर्थ, बिग डेटा मैनेजमेंट। बिग डेटा मैनेजमेंट, ये जो जितने भी तुम टेबलू, बीआई, एक्सेल, इसका जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसका तुम इंटरलिंक करोगे बिग डेटा मैनेजमेंट के साथ। टेबलू या बीआई का काम क्या है? बड़ा डेटा, या जैसे कि एक्सेल का काम क्या है? बड़ा कुछ डेटा को प्रिसाइज करके देखने के लिए तुमको एक्सेल हेल्प करता है। ठीक है, हम्म, सेम यही फंक्शंस तुम्हारा जितना भी बीआई आ रहा है, और जो भी जितना भी तुम्हारा एडवांस एक्सेल आ रहा है, ये सब तुमको ये सब चीज में तुमको हेल्प कर रहा है। बिग डेटा मैनेजमेंट इज ऑल्सो बूमिंग इंडस्ट्री। ये तीन चार चीज तो मैं भी सुना हूँ और मैं भी देखा हूँ। और बिग डेटा मैनेजमेंट में हाल ही में कैसा है, जान के भी नहीं जान के भी मैं भी बिग डेटा मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ। जैसे करके मैं पूरा फाइल, मान के चलो एग्जांपल में बता रहा हूँ, मैं पूरा फाइल, पूरा साल का फाइल डाउनलोड किया। उसमें मान के चलो एक्सेल में 5 लाख लाइन आइटम है, 5 लाख ट्रांजैक्शन है। अभी हम्म, मैं वो 5 लाख ट्रांजैक्शन को, मेरे को पूरा साल का जनवरी में कितना सेल हुआ, फरवरी में कितना सेल हुआ, मार्च में कितना सेल हुआ, ये सब देखना है ऑन अ सिंगल शॉट। हम्म, तो ये तुमको कौन हेल्प करेगा? एक्सेल का पाइवट टेबल। हम्म। सर तो ऐसा उसकी करके इंटरप्रिटेशन भी आप ही करते हो? ये सारे डेटा की कंक्लूजन आप ही निकालते हो? हाँ, निकाल लेते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं है डिसीजन अगर मेरा पास मेकिंग, एक्सेस होता तो। हाँ, बोलो। तो सर डिसीजन मेकिंग भी आप ही करते हैं? सारा डेटा आपके पास आता है? हाँ, डेटा तुमको कंपनी में रहोगे तो डेटा तुम्हारे पास तो आएगा ही। तो सर फिर कंपनी में डिमांड जब फोरकास्टिंग वाले वो जो करते हैं वो हेल्प एक्चुअल में करता है? पार्डन मी, क्या बोल रहे थे? सर जो डिमांड और सेल फोरकास्टर्स होते हैं जो बताते हैं, फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर का, वो एक्चुअल में हम्म, हेल्प आता है कंपनी में कि ऑब्वियसली कितना आता है। देखो क्या, प्रोडक्शन करना है? देखो हाँ, कोई भी कंपनी में ना क्या होता है ना, ये शायद तुम लोग को आहिस्ता आहिस्ता जब कंपनी में घुसोगे तब नॉलेज होगा। कोई भी कंपनी में ना दो टाइप का बजट होता है। एक होता है एनुअल बजट। ठीक है, मान हम्म, के चलो ये फाइनेंशियल ईयर चालू होगा मेरा अप्रैल से, अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, तब हम्म, मेरा एनुअल बजट का काम हो जाता है। जनवरी से चालू होता है, मार्च तक 3 महीने में मेरा एनुअल बजट सेट हो जाता है। मैं नेक्स्ट साल में इतना इतना मटेरियल सेल करूंगा, इतना मेरा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होगा, एक एजम्पशन कॉस्ट आएगा। ठीक है, पर तुम कोई भी कंपनी में जब ज्वाइन करोगे ना, हर महीने में देखोगे एक हम्म। डायनामिक सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग होगा। डायनामिक SNOP, ये लिख के रखो वर्ड, तुम लोग को बहुत बाद में काम आएगा। डायनामिक सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग का मतलब क्या है? मान के चलो आज तुम ये अप्रैल महीना में है, अप्रैल महीना में मैं बैठ के जब नवंबर का बजट बना रहा हूं, तब मैं मान के चलो नवंबर में लिया हूं मैं 1 लाख टन बेचूंगा मार्केट में। ठीक है, और उस टाइम में नवंबर में जाके देखा गया, मान के सीमेंट का ही एग्जांपल दे रहा हूं, नवंबर में जाके देखा गया इंडिया में 2-3 जगह में अर्थक्वेक आ गया, बहुत सारा घर टूट गया, सीमेंट का डिमांड बढ़ गया। तो 1 लाख टन जब आज का डेट में मैं टारगेट लिया था, नवंबर में जाके के सही रहेगा? हम्म, तो अक्टूबर में जब वो साइकिल जब जब ये टूटेगा ना, ये जब अर्थक्वेक आएगा या कुछ होगा, जब ये प्रॉब्लम्स आएगा, उस टाइम में देखना अक्टूबर में तुम्हारा सेम डिमांड प्लान जैसे करके डायनामिक्स सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग होगा, उसमें तुमको टारगेट दिया जाएगा, तुम 1 लाख की जगह पे तुमको अभी 1.5 लाख रिक्वायरमेंट है। और उसके साथ डिमांड बढ़ जाएगी। सेम बेस पे कॉस्ट कॉस्ट का भी एक डायनामिक प्लानिंग होगा। उस हम्म, बेस पे हर हम्म, कंपनी में दो चीज होता है, पहला है एनुअल बजट, और हर महीने में सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग। हम्म, और उसी सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है हम लोग कितना मटेरियल बेचेंगे, कौन सा एरिया पे बेचेंगे, और कौन सा एरिया में ज्यादा डिमांड है। हम्म, और कौन सा एरिया में ज्यादा डिमांड है वो नहीं है, उससे भी बेटर क्या होता है, कौन सा लो, मतलब सीमेंट में एक बात होता है NCR बोल के। ठीक है, नेट सीमेंट रियलाइजेशन। ठीक है, मतलब कौन सा NCR जितना हाई होगा, तो उस एरिया में
उतना मटेरियल सेल करके तुमको कंपनी का फायदा उतना ज्यादा है। जैसे अगर मैं जो बोल रहा था, अगर 150 किलोमीटर में तुम अगर ज्यादा मटेरियल बेचोगे रादर देन सेलिंग इन 350 और 400, तो तुम्हारा कॉस्ट टू कंपनी तुम्हारा ज्यादा बेनिफिट होगा। कि कम एरिया में ही अगर ज्यादा सेल्स हो जा रही है तो बेटर है, क्योंकि क्योंकि आने क्योंकि जाने का देखो कॉस्ट पड़ेगा। हाँ। देखो एक चीज देखो, अगर मान के चलो 150 रेडियस में सीमेंट बेच रहे हो, तुम उसको 400 रुपीज में सीमेंट दे रहे हो। 400 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर जाके बेचोगे तो उसको तो तुम 700 चार्ज नहीं कर पाओगे। कि तो वो प्राइस ऑफ वेरिएशन वो क्यों वो बोलेगा भाई मेरे को मिल रहा है 300-400 में, नियर बाई स्टेट को 150 किलोमीटर में, और मैं 700 देके क्यों लूं? क्योंकि उतना डिस्टेंस प्राइस ज्यादा है। वेरिएशन नहीं, हाँ उतना प्राइस वेरिएशन नहीं हो पाता। तो वो हम्म प्राइस वेरिएशन को सस्टेन करने के लिए मेरे को टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के ऊपर काम करना पड़ता है, उसके साथ इसलिए सेल्स का फोरकास्टिंग भी होता है। मैं कितना मटेरियल कहाँ बेचूं, इसका मतलब ऐसा नहीं है उस कस्टमर को मैं छोड़ दूंगा जो 400 किलोमीटर दूर में बैठा है। इसके इस टाइम पे दीक्षा का जो क्वेश्चन आ रहा था, जो बल्क में मटेरियल भेजना है, उस टाइम पे उस कस्टमर के लिए मैं यूज करूंगा रेल मोड rather than using रोड मोड। और रोड मोड का जितना भी है मैं 150 रेडियस में कोशिश करूंगा, क्योंकि वो सर तुम्हारा ये डायरेक्ट प्राइमरी कॉस्ट में खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो। सर ये थोड़ा सा सिली क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक डोमेन में घुस गई तो एज अ फ्रेशर तो मैं सिर्फ उसी के बारे सोचूंगी जो मेरे को काम मिला हुआ है। बट जैसे आप चीजें बोलते हो कि आप सारी ऐसे 100 चीजें कनेक्ट करते हो और वो सोच के डिसीजन लेते हो, तो वो आई थिंक बाय द टाइम ही आएगी एज एक्सपीरियंस जब बढ़ेगा। एज एक्सपीरियंस आएगा। कोई भी इंडस्ट्री में तुम जाओगे ना, कोई भी इंडस्ट्री में देखो कोई भी इंडस्ट्री इंटरलिंक्ड होता है 3 जगह से। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है प्लानिंग, और एक होता है तुम्हारा और लॉजिस्टिक। ठीक है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स, मैं टोटली बता देता हूँ और एक बार क्लैरिफाई कर दो, तुमको इजी रहेगा। और पहला होता है तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उसके बाद होता है एक प्लानिंग टीम, ठीक है। उसके बाद होता है मार्केटिंग टीम, और एक होता है लॉजिस्टिक्स टीम, ठीक है। तो कोई भी इंडस्ट्री में ये 4 टीम का एग्जिस्टेंस कैसे भी करके होगा, ठीक है। अगर तुम मार्केट मान के चलो मार्केटिंग में चले गए, इसके मतलब तुम लॉजिस्टिक्स में आ नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में भी, अगर मार्केटिंग में तुम जा रहे हो, मार्केटिंग में भी लॉजिस्टिक्स है। कैसे करके? जैसे करके जो कंटेनर्स होता है ना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है, ये बेसिकली है तो मार्केटिंग का काम, ठीक है। पर ये जो एरिया, जो सेल्स का जो एरिया होता है ना, जैसे कंटेनर स्पेस का सेल्स होता है, ठीक है, वो लॉजिस्टिक्स का ही काम है। वो बोलता तो जैसे मार्केटिंग का काम है, पर वो स्पेस कैलकुलेशंस वगैरह वो सब लॉजिस्टिक्स का ही काम होता है। rather than मैं बोला ना, 2-3 चीज में कॉन्सेंट्रेट करो। एक होता है देखो रियलिस्टिक वर्ल्ड क्या मांग रहा है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। rather than ये जितने भी टूल्स है ना, टूल्स तो अपकमिंग टाइम में जो इंडस्ट्री में जाते जाओगे ना, वो इंडस्ट्री क्या यूज करता है उसके साथ साथ तुम उसको ये कर लोगे, एकस्टम हो जाओगे। पर रेदर देन टेकिंग जो ग्राउंड का नॉलेज, जो ग्राउंड का जैसा करके हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत कम आदमी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जानता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इतना बहुत सारा जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तुमको पता है, इंडिया से अगर तुमको मटेरियल भेजना है यूएस में, कितना एजेंसीज होता है पता है? 26 एजेंसीज आर देयर टू पास अ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू यूएस। 26 एजेंसी, उसमें से स्टीवेडर एजेंट, स्टीमर एजेंट, तुम्हारा चार्टर पार्टी, सीएचए हो जाता है, बहुत सारे एजेंट होता है। ये तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। कस्टम्स क्लियरेंस करना पड़ता है, तुमको फोरेक्स में जाना पड़ेगा। तो ये सब क्या थोड़ी एक कंपनी करते नहीं करता है, इसका भी कोई थर्ड पार्टी होता है जिसको दिया जाता है, वो पूरा क्लियरेंस कराता है, ठीक है। पर उसके लिए एम्पल ऑफ नॉलेज लगता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज अ वेरी गुड लाइन। सेकंड हो गया सस्टेनेबिलिटी, और थर्ड हो गया तुम्हारा, तो जैसे करके तुम लोग आज के डेट में जो पावर बीआई, एआई, ये सब जो टूल्स में एकस्टम हो रहे हो ना, देखो ये सब टूल्स तुम लोग ऑलरेडी एकस्टम हो ही जाओगे। कारण क्या है, जैसे करके जनरेशन चेंज हो रहा है ना, तो ऐसा करके तुम एकस्टम हो ही जाओगे ये सब टूल्स में। पर ग्राउंड नॉलेज को कभी नहीं छोड़ना। ग्राउंड नॉलेज देखो, डेटा कब आता है? जब कुछ बिकता है तब तो डेटा आता है, नहीं तो डेटा कहां से आएगा? वैसे ही सेम ग्राउंड नॉलेज अगर तुम्हारा अच्छा होगा
तो मैंने मेरा सजेशन यही रहेगा, ग्राउंड नॉलेज अच्छा होगा तो तुम ड्राइव उतना अच्छा कर पाओगे इंडस्ट्री को, और सीख भी अच्छा पाओगे। rather than कोई भी मौका मिलता है, कोई इंडस्ट्री में विजिट करने का, कोई भी मौका मिलता है तुमको कई जगह पे कंटेनर यार्ड विजिट करने का, जाओ एक दिन के लिए देख के आओ कैसे कंटेनर हैंडलिंग होता है। कंटेनर हैंडलिंग भी बहुत बड़ा काम है, कंटेनर लैशिंग भी बहुत बड़ा काम है। तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरा एक दोस्त था, वो कोई कंटेनर तुम्हारा सर्टिफिकेशन एजेंसी में काम करता था, ठीक है। तो कंटेनर ऐसा भी रेडिएशन, कंटेनर में रेडिएशन चेक होता है। तो कैसा होता है, जब कोई भी कंटेनर स्टफिंग डिस्टफिंग होता है, स्टफिंग मतलब बंद करना और डिस्टफिंग मतलब खोलना, ठीक है। स्टफिंग हो रहा था, इंडिया में कोई मटेरियल भर रहा था, तो उसको रेडिएशन वो चेक किया था, उसका रेडिएशन सही आया था, ठीक है। तो उसका एक कॉलीग भी चेक किया, उसका रेडिएशन थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आया, तो उसको लगा ठीक है छोड़ देते हैं, चला जाएगा। वो कंटेनर कहीं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में गया था। तो जाने के बाद वो कंटेनर का जब खोलने से पहले ना रेडिएशन चेक होता है, कंटेनर के ऊपर एक होल होता है, उसमें घुसा के रेडिएशन चेक करते हैं। तो रेडिएशन जब चेक किया, रेडिएशन नॉर्म्स के नहीं आया था, वो कंटेनर खुला ही नहीं। वो लोग बोला उधर से कंटेनर इंडिया में भेज दिया। मतलब कितना स्ट्रिंजेंट रूल है, बहुत स्ट्रिंजेंट है रूल, ठीक है। तो ये सब चीज में थोड़ा फोकस करो। मेरे को लगता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सस्टेनेबिलिटी ये सब चीज में बहुत अच्छा फ्यूचर है और अच्छा करते हो। सप्लाई चेन तो तुम लोग पढ़ ही रहे हो, उसमें से देखो जब तुम इंडस्ट्री में आओगे तुमको लगेगा बुकिश नॉलेज और इंडस्ट्रियल नॉलेज पूरा ही अलग है, ठीक है। बट कुछ जगह पे जाके कोरिलेट कर सकते हो उसका, जैसे अगर के ROI ये सब जो फॉर्मूला पढ़ रहे हो, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये सब जो पढ़ रहे हो, ये सब चीज तुम्हारा आज के डेट में SAP के अंदर बिल्ड है, या नहीं तो कोई ना कोई टूल के अंदर इंडस्ट्री में बिल्ड है। तुमको वो हाथ से करना नहीं पड़ेगा, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुमको पेज में नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा ये करो, नॉलेज बढ़ाओ, और जेनरेटिव AI और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने का कोशिश करो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज आल्सो वेरी गुड कोर्स, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तुमको अपकमिंग टाइम में बहुत हेल्प करेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब शायद डिसीजन मेकिंग और फ्लेक्सिबल और जल्दी हो सकता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कारण। कब मान के चलो कोई तुमको कुछ जानकारी चाहिए, तुमको आज चाहिए जो आज अर्जेंटीना का ये कितना चल रहा है, तुम्हारा पेसो का प्राइस कितना चल रहा है, अर्जेंटीना का करेंसी का पेसो बोलता है, तो पेसो का प्राइस कितना चल रहा है। तो अचानक तुम गूगल में सर्च नहीं कर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तुम्हारे पास टूल है, तुम बोले तो तुमको तुरंत बता देगा। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बहुत कुछ चीज तुमको और भी अच्छा तुमको ये कर सकते हो तुम लोग उसमें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तुमको बहुत कुछ चीज, तुमको कोई प्रेजेंटेशन बनाने में, क्योंकि मैं भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हाल ही में थोड़ा सीखने का कोशिश किया हूँ। और आज के डेट में और एक चीज भी, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह ये सब जितना भी है ना, इसका बैक एंड ना पाइथन जैसा के टूल्स होता है ना, पाइथन वगैरह, इसका बैक एंड में ये सब चीज से बनाया जाता है इसका। मतलब मेरे को जितना नॉलेजेस है, क्योंकि आई एम नॉट ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी गुड टाइप ऑफ IT और ये इंडस्ट्री, तो मेरे को ऊपर ऊपर जो दिखता है तो ये सब मैं सीखने का कोशिश करता हूँ। और सीखने का तो तुम्हारा उम्र तो कुछ है नहीं, ऐसा नॉर्मली जितना दिन हो सकता है सीखना ही है। थैंक यू अंकल, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला। नाउ कृष्णा विनी विल बी प्रपोजिंग वोट ऑफ थैंक्स। Thank you so much, sir, for sharing your valuable time, experience, and insight with us today. Your perspective on the industry, career growth, and industry expectations have provided us with practical knowledge that will certainly help students better to prepare for their journey. We truly appreciate you for taking the time out of your busy schedule to interact with us and guide us through your experience in the industry. It has been very incredible insight and inspiring session. We are grateful for this opportunity to learn from someone with such a rich experience. On behalf of everyone, thank you once again for joining us and making this session so valuable. Thank you, sir. थैंक यू। जस्ट लास्ट वन वर्ड, जैसे करके मैं हिंदाल्को में जब आया हूँ, हर जगह पे मैं एक चीज देखा था। हिंदाल्को का एक टैगलाइन है, ग्रीनर, स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर, है ना। तो हिंदाल्को में जब मैं काम कर रहा हूँ ना, ये 3 वैल्यूएबल जितना वैल्यूज वो रखा है ना, ये 3 वैल्यूज के ऊपर वो काम कर रहा है कंपनी। और ये जो वैल्यूज है ना, ये लाइफ के लिए बहुत
ग्रीनर, स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर। अगर तुम सोचो कि मैं जितना भी कुछ बोला था, सस्टेनेबिलिटी, टूल्स, यूजेज ऑफ टूल्स, सब इसको इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड करता है ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अक्षत, कृष्णा, विनी, दीक्षा, थैंक यू, ओके, थैंक यू।